Today again we are meeting with our new chapter in our English subject. Okay students, today we are going to see a story of a little bird who has broken his wing. Okay, and while his wing was broken and it was winter season and all his friends went away towards the north side in a warm climate. As you know, many birds they migrate from the colder region to the warmer region in winter season. Okay, that's so what all their friends also went, and what happened after that? Which tree helped him and which tree didn't help? And that tree that have helped the bird, what happened with them? ओके, आज जो हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं उसमें एक पंछी है जिसका कि एक पर टूट गया है। जैसे आप लोग को पता है कि विंटर सीजन में विंटर रीजन की जो बर्ड्स होते हैं वो लोग माइग्रेट करके कहाँ पर जाते हैं? वार्म एरिया के साइड में जाते हैं जहाँ पर वो लोग सर्वाइव कर सके, इज़न्ट इट? तो इसी तरह उनके जो फ्रेंड्स थे वो लोग भी जा रहे थे और उसमें से एक बर्ड का जो विंग था वो ब्रोक हो गया। इस वजह से वो अपने फ्रेंड से बिछड़ गया और जब उसने वहां के ट्रीज के जो फॉरेस्ट में जहाँ पर वो था वहां के ट्रीज से जैसे उसने हेल्प मांगी तो उन लोगों ने मना कर दिया उसे हेल्प करने के लिए, और जो ट्रीज ने उनको हेल्प की उनके साथ अच्छा ही हुआ। तो चलो बच्चों, आज हम लोग ये वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने वाले हैं। Now you will also read in your textbook. I am going to explain the lesson in textbook. Why evergreen trees never lose their leaves? जो evergreen trees होते हैं वो कभी अपने leaves नहीं झड़ते उनके. That is says the name of the lesson. Are leaves useful to plants? लीव्स ये यूजफुल है प्लांट्स के लिए? यस, बिकॉज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स, इजंट इट? द फूड मेकिंग प्रोसेस आर मेड बाय द प्रोसेस इज बाय डन बाय द लीव्स. दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी प्लांट्स लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ आर लीव्स अरेंज इन द प्लांट्स? In different plants we can see the different types of leaves. Each and every plant don't have the same size, same arrangement of the leaves, isn't it? As you have seen in your garden, in your surrounding, you may find many different types of leaves. Now let's read first. Okay, you will also read. Your reading should be very proper. Let's read a story about 3 kinds of trees and a small helpless bird. Okay, what is the story about? 3 kinds of trees and a small helpless bird. Winter was coming. Which season was coming? Winter. And the birds that had flown far to the south. All the birds they have flown. Flown मतलब past tense of fly. Okay, they flown away towards the south where the air was warm. How was the air? Air was warm. And why they have flown to the south side? To get warm air to survive as the winter season was coming. And they could find berries to eat over there. One little bird had broken its wing and could not fly with the others. As all the birds were going together from that one bird, what happened with that one little bird? Yes, he has broken his wing, and that's why now he was not able to fly with the others. It was alone in the cold world of frost and snow. Okay, now how he was? He was alone in the cold world.
and with whom he was? Frost and the snow. The forest looked warm, and the little bird made its way to the trees to ask for help. As the open space, if you are in the open space, you feel very cold in the winter season. But if you are near to the forest or middle of the forest, near the trees, then you will feel warm. And that's what the little bird also thought, that till he get his wing proper and able to fly, till that time he can ask help from the trees to keep him warm over there. First, it came to a birch tree. सबसे पहले वो birch tree से help लेने आया. Beautiful birch tree, it said, my wing is broken and my friends have flown away. May I live among your branches till they come back to me? Now he is asking the birch tree, who? Little bird with a broken wing. He is asking to the birch tree, may I live with your branches? मतलब क्या मैं आपके ब्रांचेस पर रह सकता हूँ जब तक मेरे फ्रेंड्स मेरे वापस ना आ जाए? No indeed, answered the birch tree, drawing her fair green leaves away. We of the great forest have our own birds to help. I can do nothing for you. Now what did the birch answer? क्या आंसर किया birch tree ने? बिल्कुल नहीं, आप मुझे मेरे ऊपर नहीं रह सकते, और मेरे ऑलरेडी जो दूसरे बर्ड्स हैं जिनको मैं हमेशा हेल्प करता हूँ, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. ओके, द ब्रीच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. अब बर्ड खुद को समझाने के लिए एक वर्ड बोला, एक सेंटेंस उन्होंने बोला बर्ड ने, द ब्रीच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. शायद ब्रीच ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. सेड द लिटिल बर्ड टू इटसेल्फ, एंड इट माइट बी दैट शी कुड नॉट होल्ड मी इजीली. और इसी वजह से वो मुझे इजीली होल्ड नहीं कर सकता. आई विल आस्क द ओक हु मे बी स्ट्रोंगर. मैं ओक ट्री से पूछता हूं जो कि बहुत स्ट्रोंगर है. सो द बर्ड सेड, ग्रेट ओक ट्री, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, विल यू नॉट लेट मी लिव ऑन योर ब्रांचेस टिल माई फ्रेंड्स कम बैक इन द स्प्रिंग टाइम. स्प्रिंग टाइम में जब तक मेरे फ्रेंड्स बाहर वापस आ जाएंगे लौटकर, तब तक क्या आप मुझे रहने नहीं दोगे आपके ब्रांचेस पर? ऐसे बर्ड ने किससे हेल्प ली? यस, ओक ट्री से. ओके, नाउ वी विल सी इन द स्प्रिंग टाइम व्हाट द ओक हैज आंसर्ड हिम. इन द स्प्रिंग टाइम क्राइड द ओक, मतलब स्प्रिंग टाइम तलक. दैट इज लॉन्ग वे ऑफ, ये तो बहुत लंबा समय हो गया. हाउ डू आई नो वॉट यू माइट डू इन ऑल दैट टाइम. मुझे कैसे पता इतने वक्त के लिए तुम यहाँ पर क्या करोगे? बर्ड्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, एंड यू माइट इवन ईट अप सम ऑफ माय अक्रॉन्स. ओके, तो अब ओक ट्री क्या कह रहा है? इतना लंबा समय स्प्रिंग टाइम तक कैसे क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इतने वक्त के लिए? और बर्ड्स को तो हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए लगता है, और ऐसे में कहीं तू मेरे ही सारे फ्रूट्स ना खा जाए. ओक acorns are the fruit of the oak tree. Okay, what is the meaning of this? It is a fruit of the oak tree. Now, first the birch tree didn't help. Second one, the oak tree also refused to help a little bird. It may be the willow will be a kind to me. अब उन्होंने बर्ड ने सोचा कि क्यों ना मैं विलो ट्री से बात करूं, वो तो बहुत ही काइंड है मेरे साथ में, बहुत अच्छे बर्ताव करता है मुझसे. थॉट द बर्ड, एंड इट सेड, जेंटल विलो
my wing is broken and I could not fly to the south with the other birds. वापस से उससे हेल्प लेने के लिए बर्ड ने जेंटल विलो को रिक्वेस्ट की, क्या कहकर कि मेरे विंग्स ब्रोकन हैं और मैं उड़ नहीं पाया अपने अदर बर्ड्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में साउथ साइड में. मे आई लिव ऑन योर ब्रांचेस टिल द स्प्रिंग टाइम, क्या मैं आपके ब्रांचेस में रह सकता हूँ स्प्रिंग टाइम तक. नाउ दिस वॉज द थर्ड नंबर ट्री टू whom the bird asked for the help, isn't it? The willow did not look gentle then. As soon as bird asked for the help, now the behavior of the willow was extremely unexpected to the bird. Now he was not look gentle then, for she drew herself up. Okay, now the gentle looking willow tree, now he was not looking gentle and now he was stood erect proudly and said, indeed I do not know you, मतलब मैं आपको नहीं जानता. And we willows, हम willows never talk to the people whom we do not know. Very likely there are trees somewhere that will take in strange birds. Leave me at once. मतलब जो अननोन पीपल है उन लोगों से हम लोग बात भी नहीं करते तो हम आपको रहने क्या देंगे. इस वजह से आप वहां पर जाइए जहां पर कि अननोन पीपल को लोग या स्ट्रेंज बर्ड्स को जो ट्रीज अपने ऊपर बैठने देते हैं. मुझे तो बख्शी दो आप. लीव मी एट वंस. द पुअर लिटिल बर्ड डिड नॉट नो. Now the poor little bird did not know what to do. Its wing was not yet strong. अभी तक उसके विंग्स बहुत अच्छे नहीं हुए थे. But it began to fly away as well as it could. जितनी कोशिश, अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे विंग्स, लेकिन फिर भी उस बर्ड ने कोशिश करते हुए थोड़ी बहुत कोशिश की फ्लाई करने की, उड़ने की. Before it had gone far, a voice was heard. Little bird, it said, where are you going? जैसे वो थोड़ा उड़ने लगा और तुरंत ही वो ज्यादा दूर नहीं गया था, तब तक उसे एक आवाज सुनाई दी. क्या आवाज थी? Little bird, where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? और ये आवाज किसकी थी? Yes, sponge tree की. Come right here then, said the friendly sponge tree, for it was her voice that had called. You shall live on my strongest and the warmest branch all winter if you choose. आप मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट और वार्मेस्ट ब्रांच पर पूरा विंटर आप रह सकते हो अगर आप चाहो तो. जो भी मेरी स्ट्रॉन्ग और वार्मेस्ट ब्रांच होगी उस पर आप रह सकते हो, आप खुद चूज कर सकते हो. विल यू रियली लेट मी? आस्क्ड द लिटिल बर्ड एगरली. अब बहुत ही हताश हुआ पंछी जब उड़कर जा रहा था, बहुत मुश्किल से उड़ने की कोशिश करते हुए, बहुत ही सैड से जा रहा था. तभी वो तुरंत उसे एक आशा की किरण मिली और उसे एक आवाज सुनाई दी कि लिटिल बर्ड आप कहाँ जा रहे हो. और ये जो आवाज थी वो स्पंज ट्री की थी. और बर्ड ने जो बहुत सैडली था, उसे जो एक आधार मिला वो इस ट्री का था और इस वजह से उसे वो खुश हो गया. एंड उस खुशी में उसने क्या कहा? विल यू रियली लेट मी? क्या आप सच में मुझे अपने साथ रहने दोगे? ये बर्ड ने ईगरली पूछा. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे क्या हुआ, किस तरह उन्होंने हेल्प की स्पंज ट्री ने बर्ड की, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द स्टोरी.